नहीं दसना तो यह है जी साडे बाबा जी बाबा राजा राज सिंह जी बाबा जी साडे चमकौर साहब वाले इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ मिलना सी। सो साडी मीटिंग सी साडे किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्योंकि ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ एक पीसफुल एक जाबते च रह के संघर्ष किया जी। कदे कोई सिचुएशन किते विगड़ती होवे तो निहंग सिंह जथेबंदियां ने साडियां ने बड़ी जिम्मेवारी नाल आपदा एक जिहड़ा रोल अदा किया भी किसी उत्थे किसी तरह की कोई भड़काहट या कोई वायलेंस ही नहीं होण दित्ती। सो बड़ा जिम्मेवारी वाला रोल अदा किया। इस करके अज असीं मिल भी जो मौजूदा रूपरेखा संघर्ष की वो किवें आ ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਆ। फिर कुछ मंगा मनन नूं तैयार भी सी। अज उन्होंने उत्थों बंदे ही सारे तोड़ते। समय तो बयान तुसीं वेख लो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो आते रहे, उत्थों सानू गद्दारी के सर्टिफिकेट भी वंडे गए, उत्थों ये भी बयान आते रहे भी निहंग सिंह जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਖਲੂਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓਗੇ ਸੋ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੇ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਡਾਇਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਿਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੂਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਫੌਜ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ 3-4 ਪਾਰਟ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਜਾ, ਉਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ टीम उत्थे बैठी हुई है। सो ये सारा कुछ तो चल ही रहा ना साहब। मगर किसान कहते हैं, सरकार कह रही है कि दीप सिद्धू भड़काता है किसानों को, लोगों को भड़का रहा है, सरकार को भड़का। हाँ जी, सरकार ते किसान जिन्हों ने यह गल कही ना, वो 26 जनवरी को कही। मैं उत्थे 2 महीनों च मैनू कोर्ट ने बेल देती, तुसीं वो बेल ऑर्डर भी पढ़ो, ਉਹਦੇ 'ਚ कोर्ट ने भी ये गल कही हुई है भी कोई एविडेंस ही नहीं है। और लाल किला तो सारा पिरोया होया सी वीडियोज़ नाल, CCTV कैमरियाज़ नाल, है ना। उत्थे तक किसी परिंदा भी पर मारदा ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਕਤ दिख जाती है भी किसी ने की कीता, है ना। राह 'ਚ कैमरे ही कैमरे, अजकल तो सारिਆਂ ਦੇ हत्थां 'ਚ कैमरे आ, सो सानू हर बंदे ਦੀ हरकत दिख जाती है। कोर्ट ने रोल डिफाइन किया भी ना तो यह भड़काउण 'ਚ सी, ना ये किसी वायलेंस 'ਚ सी, ना ये हत्थ 'ਚ हथियार सी, ये तो उल्टा उत्थे लोकां नूं साਂਭਦਾ फिरदा सी। पर प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने ये थ्रू एक एग्जाम्पल सैट कर रही है, क्योंकि यह एक नोन फेस आ, तो नोन फेस नूं फड़ के भी आ देखो ये बंदा उस टाइम मीडिया ने मैनू पेश किवें कीता गया, देश का सबसे बड़ा अपराधी। सोचो तुसीं यार, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ खुद कह रहा भी नहीं असी जाबते च हाँ, असी पीसफुल हाँ, असी हिंसक नहीं हाँ, साडे मनां च हिंसा हो ही नहीं सकती, तो लाल किले दे विच खड़ के भी यही गल कही आ। उत्ते जाके लोगों दीयां मिन्नतां कीतियां भी बाई जी चलो हुण अकाल पुरख वाहिगुरू ने बहुत मेहर कीती है, थल्ले चल गए, आपां थल्ले चल गए। सो असी तां जाबता रखिया, उत्थे जाबता तोड़िया नहीं आ। ਅਸੀਂ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ एक पीसफुल अंदोलन ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, फंडामेंटल राइट आ साडा। आगे जारी रहेगा आंदोलन ਤੁਹਾਡਾ? पीसफुली जारी रहूगा जी। सिद्धू साहब एक छोटा सा हाँ जी, एक तरफ गवर्नमेंट बात कर रही है कि किसानों से बात करनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर आप बयानों को सुनेंगे, जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, हाँ जी, तो उन बयानों को देख के लगता नहीं है आपको कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है या आंदोलन को हिंसक करने की कोशिश की जा रही है? देखो वो हमेशा से ही, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, हमेशा से सरकार ही वायलेंस की तरफ लेके जाती है। अगर आप लाल किले में जो कुछ हुआ उसके वीडियोस आपको दे दिए जाएं, क्योंकि मुझे इंटेरोगेशन में उन्होंने सारे वीडियोस दिखाए, तो पहला लाठी चार्ज जो हुआ वो पुलिस ने स्टार्ट किया था, और विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं था, बस लोगों को बाहर निकालने के लिए, और लोग खुद ब खुद बाहर आ रहे थे। पर वो एक फ्रस्ट्रेशन में, और वो पुलिस वाले कौन है, वो भी किसानों के परिवारों से ही हैं। पर ऑर्डर कहाँ से आते हैं? ऑर्डर ऊपर से आते हैं भी हो जाओ शुरू। अब जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो हमारे लोग भी उन्होंने जवाब दिया। तो वो जो झड़प हुई है 10-15 मिनट की, मैं तो वहाँ था भी नहीं, पर मैंने वीडियोस में देखा, वो 10-15 मिनट ही चली। उसके बाद लोग पुलिस को बचाने में लग गए भी नहीं ये काम नहीं करना है हमें। जब
इसके बाद आपने वो देखा होगा, जो एक वीडियो दिखाई गई, जो हमारे पुलिस वाले हैं वो एक छलांग लगा रहे हैं, नीचे खाई में कूद रहे हैं। वो एक वीडियो दिखा दिखा के पूरे देश में एक ही वीडियो चला के इस आंदोलन को एक ठप्पा दिया गया, इसको टैग दिया गया भी ये हिंसक हो गया। हालांकि वो हिंसक नहीं था, वो 10-15 मिनट की बात थी। और वो जो आपस में किसी की मौत नहीं हुई, ये तो भगवान का शुक्र है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई। अदरवाइज़ तो पता नहीं कितने बड़े इल्ज़ामात आ जाते, पता नहीं हम आतंकवादी के ठप्पे लग जाते। और वो बैठे वहाँ कौन है? किसान। उनके पास किसी के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। और जो हमारी निहंग सिंह जथेबंदियाँ हैं, हमारी ये जो फौज है, ये तो रवायती ट्रेडिशनल हथियार है इनके पास। श्री साहब, ये रवायती हथियार हैं, ये सारे कानूनन इनको दिए गए हैं। सो इस चीज़ को आप किस तरह प्रेजेंट करते हो, एक डिफरेंट ही नैरेटिव शुरू कर देते हो पूरे देश में, और पूरा देश किसानों की तरफ देखने कैसे लग जाता है भी ये तो उपद्रवी हैं। इसी सवाल में एक सवाल और, पानीपत में अभी एक घटना हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरी है। देखिए, आप पीसफुली शांतमय आंदोलन कर रहा है, और हमारा संविधान ये बोलता है भी अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ आके कोई आपके ऊपर लाठीचार्ज करे तो क्या करोगे आप? बताइए, अपने आप को बचाओगे या लड़ोगे? यही बात है ना। एक तो सेल्फ डिफेंस भी तो आता ही है ना, और सेल्फ डिफेंस कोई गुनाह नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस भी करते हैं, उसको वायलेंस का नाम दे दिया जाता है। एक छोटा सवाल और, क्या लगता है आपको, हरियाणा पंजाब के नाम पे पैरेलल आंदोलन खड़े करने की कोशिश कहीं चल रही है? क्या लगता है? बिल्कुल चल रही है। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों चल रही है। आंदोलन जब आइडेंटिफाई हुआ ना, ये इशू किसानों का इशू, तो ये आइडेंटिफाई हुआ पंजाब से। लामबंदी कहाँ से शुरू हुई, मोबिलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई? पंजाब से शुरू हुई। धीरे धीरे हरियाणा जुड़ गया उसके साथ। सो हरियाणा और पंजाब दोनों एक इकट्ठी अपनी फाइट जो थी, अपनी एग्जिस्टेंस क्या, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों है, होंद की लड़ाई क्यों है, अकेली किसान की नहीं, हमारे सभ्याचारक होंद की लड़ाई है, जो पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन साझा सभ्याचार है। अगर आप देखिए, वो हमारे भी गांव में वैसे ही एक जीवन शैली है, हरियाणा के गांव में भी, क्योंकि 1966 तक तो एक ही था ना। हरियाणा की हिस्ट्री क्या है? पंजाब ही है ना। सो अगर हरियाणा की हिस्ट्री पंजाब है, सो इसका मतलब हरियाणा पंजाब से टूट ही नहीं सकता कभी। हम अपने होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी होंद? सभ्याचारक होंद। सभ्याचारक होंद में निशान साहब भी आएंगे, सभ्याचारक होंद में किसानी झंडा भी आएगा, सभ्याचारक होंद में तिरंगा भी आएगा। सो पर किस तरह बांट दिया जाता है हमें, किस तरह कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है, किस तरह हमें ये देखिए ये बाइनरीज क्रिएट कर दी जाती हैं भी। निशान साहब तो ये तो धर्म का झंडा है, ये लगा दिया। नहीं, वो हमारा रिलीजियस तो है ही है, साथ में सभ्याचारक झंडा भी है। जब गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में जाके शीशगंज साहब में अपना शीश देते हैं, क्यों? इसी मखलूक के लिए, इसी कौम के लिए, तो उनको हिंद की चादर कहा जाता है। उस दिन वो धार्मिक झंडा नहीं था, यही झंडा लेके गए थे वो, तब हिंद की चादर थे। सो देखिए, हमारे सभ्याचार या हमारे कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भी। ये तो सिखों का धार्मिक झंडा था, जब हमारे तंबुओं के ऊपर, हमारे ट्रैक्टरों के ऊपर लगा था, तब ये झंडा उनको नज़र नहीं आया। सो निशान साहब तो दिल्ली के हर घर के ऊपर होना चाहिए। एक हिंद की जातर, एक रहबर ने, एक कौम के गुरु ने आप इस सारे मखलूक को बचाने के लिए, इस हिंद को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया वहाँ जाके। संदेश क्या रहेगा लास्ट? संदेश यही है, लोगों को समझना चाहिए, आपस में पहले तो बंटना बंद करिए, साझीवालता का और एक प्यार का संदेश समझने की कोशिश कीजिए। निशान साहब भी आपका है, किसानी झंडा भी आपका है, और तिरंगा भी आपका है। आप जिसको कोई तिरंगा लेके जाना है वो तिरंगा लेके आंदोलन कर ले, जिसको किसानी झंडा लेके जाना है वो किसानी झंडा लेके आंदोलन कर ले, जिसको निशान साहब लेके जाना है वो निशान साहब लेके आंदोलन कर ले। ये तो अपने अपने फेथ की बात है ना। अगर उसमें भी हम बट जाएंगे, सो बात ये है। और निशान साहब जब कोरोना में, जब कोविड में, लोग निशान साहब देख के उस तरफ हो जाते थे भी वहाँ लंगर मिलेगा, वहाँ खाना मिलेगा। आज निशान साहब देख के उस तरफ चले जाते हैं भी ऑक्सीजन मिलेगी। आपको तब याद नहीं आता जब हमारी आर्मी निशान साहब लगा के चाइना बॉर्डर पे जाके लड़ती है, तो तब निशान साहब नहीं दिखता भी वो एक रिलीजियस झंडा है। कैसे यार ये बदनाम करते हैं आप। देखिए
कैसे हमें बांटते हैं और हम बट भी जाते हैं। सो संदेश तो हमें अब समझना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। अगर हमसे ये एक कॉमन ह्यूमैनिटी का टच ही ले गए, हमारा साझीवालता ही ले गए, तो फिर तो ये सरकारें और ये जो आज जो मोदी और अमित शाह और बीजेपी कर रही है, और पहले कांग्रेस करती थी, वो रात को करती थी वही चीज़, ये दिन को ही करने लग गए, ये नंगे चिट्टे रूप में ही करने लग गए। सो हमें समझ नहीं आएगा, हमें ये हमेशा से यूज़ करते रहेंगे, पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे अपने अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट में बैठ के, जो इनको फिट बैठती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को फिट बैठती हैं। लोगों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। आज लोग अपने हक लेने के लिए निकले हैं, तो फिर हमें बांट दिया जाएगा। थैंक यू।